Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respected parents, Assalamu alaikum. Today we are going to start lesson number 2 of Unit 5 of Iqra Applied Grammar Book 2. So dear students, let's start the proceedings of the lesson number 2 with the feedback segment of the homework that was given to you by me yesterday. And your homework is fill in the blanks with correct option. एंड ये एक्टिविटी आपको कल प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दी गई थी. आई होप दैट यू हैव डन दिस एक्सरसाइज द सेम वे एज आई डिड, एंड इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, इंशाल्लाह ताला दैट डिफिकल्टी विल बी रिजॉल्व्ड आफ्टर दिस फीडबैक. सो द थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वर्ब्स विच वर गिवन टू यू इन द बॉक्स, जो कि आपको बॉक्स में दे दिए गए थे. मैंने एक्सरसाइज आपके लिए कर दी है. आई विल गिव यू द फीडबैक सेंटेंस वाइज. सो सेंटेंस नंबर 1 इज He was taking shower when he slept in the bathroom. तो मैंने taking जो shower है उसकी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया, ये यहाँ से नंबर 1. सेकेंड सेंटेंस इज I was not playing video games when my mother called me. So playing video games की ऑप्शन को मैंने जो है वो not playing की ऑप्शन को सिलेक्ट किया, जो कि यहाँ से ली गई. सेंटेंस नंबर 3, we were not eating dinner when the light went off. Not eating की ऑप्शन मैंने नंबर 3 यहां से ली. सेंटेंस नंबर 4, द पेशेंट वॉज क्राइंग व्हेन द डॉक्टर केम. जब वो डॉक्टर केम तो इस ऑप्शन को मैंने क्राइंग के ऑप्शन को यहां से मैंने लिया, उसके रीजन को देखते हुए इंटरप्शन के. सेंटेंस नंबर 5, द टीचर वॉज गिविंग लेक्चर व्हेन दे मेड अ नॉइज. तो जो गिविंग की ऑप्शन है वो मैंने यहां से सिलेक्ट की. Sentence number 6, you were going to school when you found your lost bag. तो going की ऑप्शन को मैंने ये नंबर 6 यहाँ से सिलेक्ट किया. So dear students, I hope that you have done this exercise the same way, and if there is any mistake, that mistake will be corrected after getting the feedback. So dear students, now it's time to move on to the next exercise of this unit. So dear students, our next exercise is exercise B, match the suitable options. हमारे पास जो exercise B है वो ये है that we are going to match the suitable options. As you can see that we basically have two parts of the sentence. The first one is an ongoing action part or the past continuous part, and the second part and the second column is about the past, simple past पोर्शन. हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो सिंपल पास्ट का पोर्शन है. हमने क्या करना है, विल मैच द टू पार्ट्स विच आर क्वाइट सूटेबल इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ सेंटेंस. हमने उन दो हिस्सों का इंतखाब करना है, अगर वो मिल जाए तो एक मुकम्मल जुमला बन जाए और उस जुमले की एक सेंस भी बन रही हो. जैसे एक ऑप्शन आपके लिए कर दी गई है, इंशाल्लाह ताला आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ this example things will become more clear for you. Your first part is he was playing rugby, और जिस ऑप्शन के साथ इसको मैच किया गया है दैट ऑप्शन इज when he got injured. तो हमें इन दोनों जो पार्ट्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज और काफ़ी एक सेंस नज़र आ रही है. यानी he was playing rugby, वो रग्बी खेल रहा था. when he got injured, जब वो उसको इंजरी हुई. तो it's quite understandable for the students to understand that there is quite a relation between this part and this part. The same way you will find the relation of this part of the sentence with this part of the sentence in order to complete this exercise and match the suitable option. So dear students, it's your turn to do it on your own. You have already drilled the structure of past continuous tense with simple past. I hope that there will be no difficulty for you. So we'll do this activity together. First, you'll pause the video, you do it on your own, and then after that, I'll come and then I'll give you the feedback during this lesson of this exercise. So you have 5 minutes to do this exercise. So your time starts right now. So dear students, I hope that you have done this exercise effectively, and there will be no difficulty for you while solving this exercise. Now it's time to give you the feedback. So your job is to complete the exercise B, and the thing that you have to do is to match the suitable options. आपने suitable options को match करना था. You will take the first part of this sentence and to have to match with it the second part of the sentence. Further example has already been done for you. पहली example आपके लिए पहले ही कर दी गई थी. And the remaining
examples inshallah ta'ala will be done by me with the help of you while giving feedback. The second option is I was writing a letter, और इसको मैंने मैच किसके साथ किया है, when I broke my pen. So इन दोनों सेंटेंस, इन दोनों पार्ट्स में हमें सेंटेंस के एक रिलेशन नज़र आ रहा है और ये सेंटेंस को कंप्लीट भी कर रहा है. थर्ड ऑप्शन इज द स्टार्स वर ट्विंकलिंग. अगर हम इसकी मैच करता ऑप्शन की तरफ देखेंगे, व्हेन वी लुक एट द स्काई, तो ये हमें काफ़ी हद तक रिलेशन वाजे नज़र आ रहा है कि द स्टार्स वर ट्विंकलिंग व्हेन वी लुक एट द स्काई. सो आपके लिए कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए. ऑप्शन नंबर 4, शी वॉज रीडिंग अ बुक. अगर इसको हम इसके रिमेनिंग पार्ट से देखें जिसे हमने मैच किया है, व्हेन शी फेल asleep, तो ये भी हमें काफ़ी हद तक ऑब्वियस मैचिंग दिखाई दे रही थी और क्वाइट इजी फॉर अस टू मैच दिस पार्ट विद दिस पार्ट. एंड देन द ऑप्शन नंबर 5, दे वर वॉकिंग इन द पार्क, और इसको जिससे मैच किया है व्हेन दे सॉ अ कैमल, तो ये भी हमें काफ़ी हद तक ऑप्शन जो है वो ऑब्वियस दिखाई दे रही थी. नाउ द ऑप्शन नंबर 6, द बिल्डर वॉज ड्रिंकिंग टी, और जिसके साथ हमने इसको ऑप्शन के साथ मैच किया है व्हेन द वॉल कोलैप्स्ड. सो ये भी हमें काफ़ी हद तक ऑब्वियस रीज़न दिखाई दे रहा था. So dear students, I hope that you have done this exercise the same way as I did, and if there is any difficulty or mistake, that mistake will be corrected after getting this feedback. Now it's time to move on to the homework segment for today's lesson, which is going to be your exercise C. So dear students, your homework is exercise B. Complete the sentences with suitable option given in the box. आपने क्या करना है, आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है उन ऑप्शंस के साथ, उन सूटेबल ऑप्शंस के साथ जो आपको बॉक्सेस में दे दी गई हैं. दिस एक्सरसाइज इज क्वाइट सिमिलर टू द एक्सरसाइज ए. ये एक्सरसाइज ए के बिल्कुल सिमिलर एक्सरसाइज है, बट उसमें हमारे पास सिंपल वर्ब्स है, यहाँ पे हमारे पास फ्रेजेस हैं. आप इन फ्रेजेस से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे. इन दिस एक्सरसाइज वी हैव 8 सेंटेंसेस टू कंप्लीट. हमारे पास 8 जुमले हैं जिनको हमने कंप्लीट करना है, जिनकी ब्लैंक्स को फिल करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, बॉक्सेस में मौजूद ऑप्शंस को देखना है और उनके अकॉर्डिंगली आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, उनकी ब्लैंक्स को फिल करना है. हमारे पास जो बॉक्स में ऑप्शंस है वो कौन कौन सी है, शॉप इन द मार्केट, यूज हैमर, कंप्लीट द होमवर्क, प्लक रोज फ्लावर्स, वर्क इन द गैरेज, स्टील गोल्ड, हैव अ साउंड स्लीप, ट्रैवल बाय बस. और हमारे पास जो 8 सेंटेंसेस होंगे, आप इन 8 सेंटेंसेस को इन ऑप्शंस के साथ कंप्लीट करेंगे अप्रोप्रिएटली. जहां कोई फ्रेज अप्रोप्रिएटली यूज हो रहा होगा आप उसको अकॉर्डिंगली यूज करेंगे. अगर आपको फ्रेज यूज करने में कहीं को कंफ्यूजन हो रही होगी, सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल टेक हेल्प फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बिकम a key for you, a facilitator for you while solving the first part of the sentence. चूँकि वो आपको रीज़न ऑफ इंटरप्शन से ही पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सी पार्ट ऑफ द बॉक्स से हमने इसको फिल करना है, यानी किस फ्रेज से हमने इसको कंप्लीट करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम.